सो आज हम लोग स्पेशली लाफ्टर योगा शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। तो अशोक जी एंड उनकी टीम पूरी जलवायु विहार से आए हैं स्पेशली। आई वुड लाइक टू जस्ट गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ अशोक जी। So, Commander Ashok Sani, he retired from Indian Navy in 2008 after 35 years of meritorious service. Later, he joined Delhi Council for Child Welfare as Executive Director for a year before taking up research assignment at RSIS. He initiated Laughter Yoga in the year 2014 in Jalvayu Vihar in Noida, which is the most successful and acknowledged laughter club in India, with more than 100 members. He was trained as laughter leader and trainer at Laughter Yoga International University, Bangalore by Dr. Madan Kataria. Madan Kataria is the founder of Laughter Yoga. For his dedicated outstanding services in spreading laughter yoga across Delhi NCR, he was designated Laughter Ambassador by Laughter Yoga International in 2015. So let us welcome Ashok ji and his team on the stage now. Thank you very much, Simmi ji. जहाँ तक सिमी जी का सवाल है, it is like homecoming for me because we were here, right here, I think in the year 2015-16. Yes. And that is the year we had started. End of 2014, 15 में बहुत जोश था. And Rahagiri, I think people are more familiar. Equivalent of Rahagiri, there used to be Noida City Center. Wave group का था Smart Geo. Smart Geo मतलब live healthy, live smartly. So on Sunday morning in the Noida City Center, there used to be these health activities. Yoga, Zumba. We went and did laughter yoga also there. So that is where Simiji saw us. And then she requested to come here and we came and we had sessions. यहाँ पे भी किया था, वो lawn में किया था काफी. We were here for at least 5-6 times. So anyway, it's wonderful to be back. And so I will request, ये speech का time नहीं है, it's time for action. So Navy means action, okay? So I will request everybody to stand up, rise, and let's warm up. Very good, very good. Yeah. बहुत अच्छे, ये बीच बीच में हम ये करते रहते हैं और ये याद दिलाते हैं कि हम अभी भी छोटे बच्चे हैं. और इसकी वजह है क्यों हमें याद दिलाना आवश्यक है कि हम छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बाय द वे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. लाफ्टर योगा 1995 में शुरू किया था डॉक्टर मदन कटारिया ने, हु इज अ मेडिकल डॉक्टर, एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी, लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स आर बैकिंग इट. yesterday, just yesterday we were at Dharamshila Hospital Delhi function. उन्होंने किसी होटल में किया था for the cancer survivors. So we often go and do this session in the hospitals also. So it has the backing of the medical fraternity. इस पे worldwide there are more than 200 research papers, medical research papers, bringing out the benefits, and it is spread to 120 countries. America, Europe, whole of Asia, Japan. So obviously people are benefiting. And बच्चे, मैंने कहा बच्चे बनने की, याद कराने की, क्योंकि वो जो रिसर्च पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें स्टडी सेज एवरेज चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन, देयर आर सम स्मॉल चिल्ड्रन देयर, अगर आप पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स गिनेंगे, दिन में ये 300 से 400 दफ़ा हंसते हैं. और हम लोग बड़े, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट. 5-10 times if at all. So which is not enough. Because जब ये natural दिया है बॉडी ने, बॉडी, माइंड, सोल, इट्स अ कंप्लीट नेचुरल सिस्टम, उसमें सभी कुछ दिया है. और हंसी, nobody teaches a child how to laugh. It comes naturally. और जो भी कुछ प्राकृतिक हमें दिया है ऊपर वाले ने, उसका कुछ ना कुछ फायदा है, ज़रूरत है. तो हंसी भी दी है, तो अगर हम नहीं हंसेंगे इसका मतलब कुछ आप रोकथाम कर रहे हैं अपने हीलिंग प्रोसेस से. सो हंसना बहुत ज़रूरी है. तो अभी हमने वार्म अप किया एंड सम पीपल आस्क की लाफ्टर योग, व्हाई योग? योग इज फ्रॉम इटसेल्फ, इज फ्रॉम योग.
प्राणायाम, वी आर ऑल फेमिलियर विद प्राणायाम. सो लेट्स डू सम डीप ब्रीदिंग. और ये एकदम तालमेल है. अभी आप देखेंगे जैसे भी प्रोग्रेस, तालमेल बिटवीन ब्रीदिंग एंड लाफ्टर. वी विल सून रियलाइज कि जब हम हंसते हैं इट इज लाइक ब्रीदिंग आउट. सो शुरू में लेट अस डू अ फ्यू टाइम्स जस्ट डीप ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज, स्लो लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, holding count of 3, and then breathing out through the mouth longer than breathing in. That is normal yogic breathing. So let's do it together. Breathe in through the nose, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं. And hold, breathe out. Totally relaxed, calm. Now, the principle behind this is we are more particular about the breathing out part, क्योंकि ये जो फेफड़ों में रेजिडुअल एयर रह जाती है, स्टेल एयर, जिसमें ऑक्सीजन बचा ही नहीं है, तो उसको जब तक खाली नहीं करेंगे तो enough space is not there for the fresh air full of oxygen to come. So that is the principle. तो आवाज आनी चाहिए मुंह से when we are breathing out forcefully. One more time. Breathe in. Slow, long, deep. And hold. Breathe out. Wonderful. You're feeling the feeling. बिकॉज हर एक चीज़ जो हम फीलिंग के साथ करेंगे, इमोशन, वो उतनी ज़्यादा बढ़िया होती है. ठीक है ना. तो फीलिंग के करने से के लिए वी हैव टू ग्रेजुअली कम इन द मोमेंट. ये पूरी तरह ब्रेथ पे आ जाइए, बिकॉज इस पल में ब्रेथ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है ही नहीं. सांस है तो जीवन है, और जीवन है तो सांस है. ठीक है ना. तो एक दफ़ा फिर से, और इस दफ़ा फीलिंग क्या आएगी, ये सिर्फ हम ताज़ी हवा फुल ऑफ ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर रहे हैं. वी आर ब्रीदिंग इन द लाइफ फोर्स ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ, द प्राण शक्ति जो हमें जीवित किए हुए, दैट इज व्हाट वी आर ब्रीदिंग इन. एंड दैट लाइफ फोर्स इज कॉमन टू ऑल लाइफ इन द यूनिवर्स. सो इन अ वे वी आर ऑल्सो बीइंग कनेक्टेड विद द एंटायर लाइफ ऑफ द यूनिवर्स, विद द एंटायर यूनिवर्स. दैट फीलिंग. And while breathing out, we are not just breathing out the stale air full of carbon dioxide. हम breathe out कर रहे हैं अपनी सारा stress, tension, थकावट, tiredness, fears and anxieties. Everything we are breathing out and feeling relaxed. So let's do it one more. Slow, long, deep. हंसी भी एक तरह से breathing out क्रिया है. It is like breathing out. Let us check it out. So we will breathe in as before. Instead of breathing out, we are going to laugh it out. और आपने हंसी हंसनी है एकदम, जैसे कहते हैं ना, दिल खोल के. कोई रोकना नहीं है. नो रिजर्वेशन, नो शाइनेस. बिल्कुल दिल खोल के. Breathe in. Slow, long, deep breathing. Energizing, connecting. And hold. And hold. वंडरफुल. और हम कॉमेडी आती है मेरे को, तो हम एक्सरसाइज जो प्राणायाम में हम लोग एक्सरसाइज के रूप में करते हैं ब्रीदिंग, राइट. प्राणायाम इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. सेम वे इन लाफ्टर योगा वी डू लाफ्टर एज एन एक्सरसाइज. इसका मतलब हमारे पूरे नियंत्रण में है, कंट्रोल में है कि हम कितना लंबा हंसें, कैसे हंसें. एज एन एक्सरसाइज लाफ्टर योग है. स्लो, लॉन्ग, डीप, एंड होल्ड एंड होल्ड. Very good.
वेरी गुड ये लहर नहीं दौड़ गई, खुशी की लहर भी दौड़ गई, बिकॉज लाफ्टर इज कनेक्टेड विद जॉय, खुशी, बिकॉज दिस ब्रेन, हमारा माइंड कैनॉट डिफरेंशिएट, ये इट इज कॉल्ड अ मंकी माइंड, इट इज ऑल्सो अ स्टूपिड माइंड, इट कैनॉट डिफरेंशिएट कि हम लोग किसी वजह पे हंस रहे हैं या बिना वजह हंस रहे हैं। तो जो अंदर मैजिक होना होता है ना, feel good hormones are released, endorphins are released, and we feel happy, we feel nice. They are released whichever way you may be laughing. किसी वजह से या बिना वजह। तो अगर हम बिना वजह हंस के और खुश रह सकते हैं, तो आपको फिर हमने एक रिमोट कंट्रोल दे दिया ना खुश रहने का। Why fight for the TV remote at home? This is the remote we should be working on. Laughter remote which keeps us happy. Wonderful. So it is magical. I because ये इतनी research, I am a simple naval man. ये MBBS or medical terminology I don't understand. I explain whatever the benefits we've been getting through laughter, and one word, it is magical. It's magic. So is it worth it? Do you want to learn this magic? Yes. देखना चाहेंगे ये magic? Yes. Okay. Let's teach you this magic. And this is the best magic you'll ever learn in life. ठीक है जी? एक लंबा सांस अंदर, तैयार हो जाइए मैजिक करने को, एंड क्रिएट मैजिक। अभी इसमें नाक के ऊपर बेशक दूसरे हाथ से लंबा सांस अंदर, गेट रेडी टू क्रिएट मैजिक एंड क्रिएट मैजिक। Very good, very good. Yeah. But the actual magic happens inside because of that laughter. उस हंसी की वजह से जो आपके अंदर जज्बात पैदा होते हैं, फीलिंग्स पैदा होती हैं, इमोशंस पैदा होती हैं अंदर, वो मैजिक। तो कोई बताएगा क्या फीलिंग और इमोशन आई वो जो हम 3-4 दफा हंसे हैं? क्या सबसे अपर मोस्ट क्या है अभी माइंड में? लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं। नहीं, और इमोशन, हैप्पीनेस हैप्पीनेस फिजिकल वी आर स्टिल लाफिंग, हैप्पीनेस इज देयर। Happiness. That's the point. Everybody in the world wants to be Happy. happy. आपको बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अपना एरोप्लेन चाहिए। Why? To be happy. और हम तो यहाँ सिर्फ एक हंस के, कोई पैसा फ्री है। Laughter has no fees, nothing. We can just be happy. ठीक है? Happiness. Up higher level of happiness. ये जब आप हंस रहे थे और जो फीलिंग आ रही थी, आपस में आप लोग सब रहते हैं, जब भी हम सब रहते हैं तो आपस में थोड़ा कभी आर्गुमेंट होता है, मनमुटाव भी हो जाता है, पर किसी के प्रति आपके पास, आपके मन में कोई द्वेष की भावना, कोई जेलसी या कोई नेगेटिव इमोशन हो ही नहीं सकता। इफ यू आर नहीं, अभी हंसी जब हो रही है, हंसी के जब आई कैन चैलेंज व्हाइल लाफिंग, you cannot feel negative about anything. You cannot feel jealousy for anybody. You feel apnapan, love, happiness, love, positivity. Can't think of negativity. That is the bigger challenge today in the world. Negativity. Laughter overcomes that negativity. ठीक है? तो ये हमारे सब देश चाहते हैं ना, वो हर रोज दोहराना पड़ता है। तो let us do some affirmations, and they are all related to laughter. क्योंकि ये सब खजाने हैं हमारे अंदर ही, कोई बाहर से कुछ नहीं आ रहा। लव, जॉय, पीस, पॉजिटिविटी, ये सब अंदर है ऑलरेडी। लाफ्टर इज द मैजिक की जो ये सारी तिजोरियाँ खोल देती है। तो प्लीज रिपीट विद मी। पहला करेंगे, इन्होंने बोला हैप्पी, जॉय, बिकॉज हैप्पी तो हम लोग लाफ्टर योगी, वी आर हैप्पी ऑल द टाइम एंड वी आर हैप्पी फॉर नो रीजन, so that makes us joyful. Please repeat, I am joyful. I am joyful.
Very joyful. Very joyful. Always joyful. Always joyful. Breathe in. हम अपनी ब्रीदिंग में ले आए, स्ट्रेच भी करिए साथ साथ, जो पंजों पे खड़ा हो सकते हैं धीरे धीरे. More stretch, पूरी तरह stretch and hold, hold, hold. Unlock joy from within and spread the joy. Because not only are we unlocking more joy within us, we are then giving it out. हम दे रहे हैं उसको. Without wanting anything back, we are giving it to the universe. And the joy of giving selflessly is the most wonderful joy, is the best joy. और हमने क्या बोला था? Love. Love is such a powerful feeling. Mother's love can move mountains. ट्रकें और बसें तो we know. Mothers to save the child. And mother's love has moved that bus and truck, stopped it in the tracks to save the child. That is the power of mother's love. I'm loving. I'm loving. Very loving. Very loving. Always loving. Always loving. Breathe in. Stretch. Broad stretch. Or pull the stretch and hold. Hold, hold, and let us unlock love and spread love. Wonderful, wonderful. There are no boundaries, there are no limits. You can keep doing the whole day. 1 घंटा करिए, दिन को करिए, शाम को करिए. यहाँ पे we are giving you just an idea, trailer. एक थर्ड एफर में what is it that the world is most in need of today? किस चीज़ की आवश्यकता है यार? देखिए वहाँ लड़ाई चल रही है, वो इसराइल, वो यूक्रेन रशिया की पहले ही चल रही थी, यहाँ इसराइल में शुरू हो गया और भी कहीं शुरू होने वाली है. Peace is absolutely essential, and peace starts here, right within us. And हमारा उद्देश्य है, मोटो है लाफ्टर योगा इंटरनेशनल का, वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर. So it begins right here. So let us make ourselves totally at peace, and then that peace will radiate around us, and gradually it will spread to the world. I am peaceful. I'm peaceful. Very peaceful. Very peaceful. Always peaceful. Always peaceful. Breathe in. Stretch. Little more. Let's stretch fully and hold. Hold, hold, and unlocking peace, spreading peace. Very good. Very good. करीबन 20 मिनट पहले उससे बेटर. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. Top of the world. Top of the Wonderful, world. wonderful. So, if few minutes of laughter can make us feel on top of the world, why limit it to just this half an hour, 40-minute session? We must practice to bring laughter in our daily life. पूरा दिन जो भी हम करें, हंस के कर सकते हैं, isn't it? So, it is. They say it is easy. जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत आसान है हंसना. कोई भी हंस सकता है when everything good. So let us practice a few times, few laughs when there are challenges. जब सब कुछ आपके अनुमति अनुसार नहीं चल रहा, तब भी हंसेंगे. So one common problem, common challenge, traffic, driving in traffic, isn't it? नोएडा से गुड़गांव भी जाते हैं कई लोग, I know it. And दिन में सिचुएशन इम्प्रूव, बट मॉर्निंग इवनिंग ट्रैफिक टाइम तो है. और ये सबके साथ होता था कि आप कुड़ते थे, आप फ्रेटिंग, फ्यूमिंग, एंग्री, कर्सिंग, अब्यूजिंग, एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू एंड गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट. ठीक है ना? नाउ then I learned this within 1 year. तो ट्रैफिक है तो क्या करें, जाना है तो हंसते हुए जाओ और लेफ्ट और राइट में देखे उनको भी हंसाओ.
You press the button and you want the result. So we don't like to wait, right? And when we are traveling, और अब fog season भी आने वाला है, your flight is delayed, your train is delayed, then what do? Don't get stressed up. अब आप airport पहुंच गए and flight is 2 hours late. पहले भी नहीं बताया उन्होंने. And the normal reaction, oh my God, what do I do now? तो अभी public place है airport, ठीक है? So we have to laugh. तो phone तो सबके पास है. So that people don't start raising eyebrows looking at you, you take out your phone and you pretend you are talking to a friend and you start laughing. कुड़ के करने से अच्छा है कि हंसते हंसते करो. तो साफ सफाई करेंगे, डिशेस करेंगे, सब हंसते हंसते करेंगे. कपल्स भी हम लोग लाफ्टर क्लब में ना, तो वो मेड जब नहीं आती फिर वो बांटनी पड़ती है ड्यूटीज हस्बैंड और वाइफ के बीच. तो हस्बैंड को मिली ड्यूटी आप झाड़ू पोछा करो, ठीक है? तो वो बाहर के भी, तो वो हंसते हंसते कर रहे थे. उनको इतना आनंद आ रहा था कि उन्होंने सिर्फ अपने घर के आगे नहीं की, वो आस पड़ोस में enjoying himself so much, उनको पता ही लगा कि ये तो पड़ोसियों के आगे. अच्छा, वंडरफुल. उसके बाद लेट्स डू सम सिंगिंग एंड डांसिंग. ओके, सो लास्ट चैलेंज लेंगे आजकल. कन्वीनियंस, ऑनलाइन शॉपिंग, राइट? हार्डली एनीबडी इज गोइंग टू मॉल सब खाली पड़े हैं. ऑनलाइन शॉपिंग होगी. ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंट, पेमेंट भी हो जाती है क्रेडिट कार्ड से, बट कष्ट होता है कई दफ़ा एंड ऑफ द मंथ वो क्रेडिट कार्ड बिल आ गया. वो 10-15 हज़ार की जगह आ गया 40-50 हज़ार. सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड एंड लुक एट द बिल एंड स्टार्ट लाफिंग. हो जाती है. वो कहता है मैंने तो किया नहीं, तुमने किया होगा. तो झगड़ना भी है ना आपस में, तो भी हंस के जब आपका साथी या मित्र तो ये है ना कि शायद गलती आप ही की हो दो में से, तो जब एहसास हो तो एकदम से सॉरी भी बोल दो, वो भी हंसते हंसते Forgiveness is a person's sake for your own self, for your own peace. Forgiveness. Wonderful. Animals. Human beings are social animals. तो अकेले रहना मुश्किल है.
तो वी लिव विद फ्रेंड्स फैमिली, तो इंटरपर्सनल रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर जो अभी हमने की 2-4 एक्सरसाइजेज, अगर आप हंस के बिताएं तो योर इंटरपर्सनल रिलेशन कैन नेवर गो रॉन्ग, विल ऑलवेज बी लाफिंग एंड जॉयफुल। सो दे से देयर आर 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ जॉय। हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ऑल वांट जॉय, more and more joy in our lives. So laughter is one, childlike play is one, because children, आप उनको छोड़ दीजिए खेलने के लिए, वो उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, हंसते रहेंगे। और तीसरा चौथा है सिंगिंग एंड डांसिंग। So let's do some singing and dancing. तो थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, आगे आ जाइए। इट्स वेरी सिंपल डांस। हम अभी फाउंडर की बात कर रहे थे, डॉक्टर मदन कटारिया, उन्होंने ये क्रिएट किया, ये बॉलीवुड लाफ योगा डांस। बहुत सिंपल स्टेप्स है, सिंपल मूवमेंट्स है, एवरीबॉडी कैन डू इट। फ्लोर पे आइए, फ्लोर पे। एवरीबॉडी कैन डू इट एंड हैव लिटिल स्पेस अराउंड यू। और यहाँ पे बहुत जगह है, नहीं तो आप लोग ऊपर भी आ सकते हैं। ऊपर भी आ सकते हैं। हाँ, आगे आइए सर, प्लीज कम, प्लीज कम। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इधर लाएंगे, आप लोग हमें स्टेप्स आर वेरी सिंपल। तो ऐसे दिखा रही हो, ऐसे करिए, जैसे वो कर रहे हो। 3, 4 Very good. Very good.
अभी आप लोग मान रहे हैं, आप सबने अति उत्तम, ये सर्वश्रेष्ठ, हिंदी आती है ना सबको? हाँ, सर्वश्रेष्ठ मतलब इधर, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए साहब। वेरी गुड, शाबाश, and spread happiness. Very good. And very right. Situation and spread happiness. You can laugh in any situation and Yes. your body healthy. Yes. So very true. So we are all in agreement. We are all in agreement कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य सभी का है एक ही, खुश रहना है। happy and joyful. And it is very easy to do that. और ये हमारे हाथ में है। आप सबने ये मुहिम ले ली कि हमें खुश रहना है और हम रहेंगे। तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें कोई और आके खुश करेगा। वो नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा। You have to be happy yourself. We have to be happy ourselves. And it is free. By the way, all good things in this world are free. अभी पानी बिकने लगा है, पहले तो पानी नहीं था, हवा भी अभी तक फ्री है। हंसी वो आपकी एक और हंसी बन गई। Despite all the fogging, we will still laugh. Okay, thank you very much. कंटिन्यू करना चाहेंगे क्या? Yes. तैयार है सब लोग? अंकल विटनेस, तो
तो अभी हम एक प्लान बनाएंगे, संडे के संडे रखेंगे, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन रखेंगे। हफ्ते में सर्दियों में तो यही टाइम मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चों के स्कूल वूल नहीं है अभी इस टाइम पे। 5 का रखो, 4 जल्दी नहीं है। ठीक है, 4 या 5 ठीक है। अभी देखिए तो बस ये है कि बाद में भाग मत जाइएगा, सब आइएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे थे और उसके बाद में सब आना शुरू नहीं आते तो फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसी बात पे अब आप 10 मिनट के लिए बैठिए, प्लीज प्लीज। कॉन्सेप्ट जिसमें एक भी पैसा यूज नहीं होता, सिर्फ एफर्ट्स लगते हैं और हम उससे बहुत सारे लोगों को खुशी दे सकते हैं। जैसे अभी अशोक अंकल ने बोला कि हम सिर्फ हैप्पीनेस दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। हमारे घरों में बहुत खाना वेस्ट होता है, हमारे घर में पार्टी होती है, हमारे यहाँ इतने इवेंट्स होते हैं, सारा खाना वेस्ट होता है और हम लोग फेंक देते हैं। रॉबिनहुड आर्मी उस खाने को जो सही नीडी लोग हैं उन तक पहुँचाते हैं। आपको सिर्फ उनको एक कॉल करना है, तो अच्छा लगेगा कि आपके घर का खाना जो बचा हुआ है वो किसी ज़रूरतमंद के पास जाए। So I would now like to introduce Robinhood Army team. Please come. For them also because they are doing wonderful job. I am all for this thing कि हमें ये सब जरूर करना चाहिए। I also propose them कि हमारी सोसाइटी में भी कुछ वॉलंटियर्स होने चाहिए रॉबिनहुड आर्मी के। तो जो इंटरेस्टेड है इसको, क्योंकि वो एक 2 या 3 बंदे ऐसे हो जाएंगे जिसको हम मतलब एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए बिटवीन द रॉबिनहुड्स एंड द सोसाइटी, वो 2 या 3 बंदे बहुत हैं हमारे लिए। तो अगर आपके दिमाग में किसी का भी नाम है हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव चौधरी है। हंसा दिया, अभी पेट काफ़ी खाली हो गया है। तो गाना मुझे यही याद आ रहा था हमेशा, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो हमें हंसना है, हंसते हंसते जितना हो सके अपनी तरफ से सोसाइटी को जितना हम दे सके, जितना खुद खुश रह सके, जितना दूसरों को खुश रख सके, वही जीवन है, बस यही है। तो बेसिकली RHA, रॉबिनहुड आर्मी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में RHA। तो रॉबिनहुड आर्मी शुरू हुआ था हमारा 10 साल पहले, जैसे अंकल का लाफ्टर क्लब जो 10 साल पहले शुरू हुआ था, हमारा भी 10 साल पहले शुरू हुआ था सन 2014 में। मिस्टर नील घोष थे जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने ऐसे ही देखा जैसे हम सभी लोग देखते हैं बेसिकली। अभी हम लोग खाना कहीं भी हम रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं या हम लोग कहीं पार्टी कर रहे हैं या कोई भी भंडारा हो रहा है तो खाना बच जाता है। तो उस खाने का क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसी को देखते ही 2014 में ये एक मुहिम शुरू की गई थी, ये काम शुरू किया गया था। तो बेसिकली मेन कंसेप्ट क्या है कि जहाँ भी कहीं रेस्टोरेंट में आप कहीं भी प्रोग्राम करते हैं या सोसाइटी में कोई भी किसी भी तरह का खाने का प्रोग्राम होता है, वो जो भी खाना बचता है वो हम लोग पिक करते हैं। पिक करने के बाद वो हम जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं झुग्गियों में लेके जाते हैं या रैन बसेरा में लेके जाते हैं या रिक्शा वालों को खिलाते हैं, जैसे भी होता है अल्टीमेटली उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये मेन हमारा काम है। खाना कितना भी होना चाहिए। होता क्या है कि मान लिया 8 लोगों खाना है तो नॉर्मली हम लोग ये बोल देते हैं कि आप गार्डन जो है उनको दे दीजिए, वो लोग खा लेंगे। और ज़्यादा हो कितना भी हो, 1000 लोगों का खाना भी हमारे पास साई संध्या से या दुर्गा पूजा के पंडाल होते हैं, उनमें 1000 लोगों का खाना भी हमारे पास आता है। तो ऐसा कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, लेकिन वही 10-5 लोगों का वो होता है कि रात के टाइम जाएँ कोई तो होता है कि गार्डन गर्ल को खिला देते हैं हम लोग। नहीं 50 का हो, 60 का हो, 100 का हो, कितना भी हो। तो ये मेन कंसेप्ट शुरू हुआ था। उसमें क्या है बेसिकली रॉबिनहुड आर्मी के कुछ रूल्स हैं। उसमें क्या है कि हम लोग एक जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है। जीरो फंड मीन्स हमारा कोई अकाउंट नहीं है, किसी तरह का हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी तरह के हम कोई एम्प्लॉय नहीं है। मैं भी, बाकी ये भी सब लोग अपनी अपनी अलग जहाँ जहाँ जॉब करते हैं सब लोग प्रोफेशनल हैं। मैं भी IT में जॉब करता हूँ, तो मैं भी जितना फ्री टाइम मिलता है उतना ये काम लोग करते हैं। और बेसिकली मेरा भी, मैं तकरीबन 2017 में जुड़ा था, तो यही एक मेन कारण था सबसे पहला कि जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है। हम जहाँ भी आसपास NGOs देखते हैं मेनली फंड बेस्ड होता है, हमारे यहाँ कोई फंड नहीं है, किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं है। आप अगर मान लिया कोई डोनेट भी करना चाहेंगे, हम आपसे कोई एक पैसा नहीं लेंगे। अगर आपको अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना है कि हम झुग्गी में जन्मदिन मनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मनाना चाहते हैं कि उन्हें लगे कि हाँ बेसिकली क्या क्या ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें भी
दुनिया का पता लगेगी, उसके लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं। बट हम पैसा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, आप आइए, हम आपका ऑर्गेनाइज कर देंगे, आप जन्मदिन बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या ओल्ड एज होम जाना है तो ओल्ड एज होम में आप टाइम स्पेंड करना है, हम लोग आपको लेके जाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, उस तरह का हम लोग करते हैं। दूसरा, खाने की बात हुई, अगर बचा हुआ खाना एक जगह हो गया, ये पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये हो गया कि अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है अपना, उसके लिए हम लोग, एक तो ये है कि आप अपना खाना लेके आ जाइए। सेकंड थिंग ये है कि खाना नहीं भी है तो हमारे कुछ डोनर्स हैं जो रेस्टोरेंट हैं या फिर या फूड बेकरी वाले हैं, या वो हमें खाना बना के भी दे देते हैं कि आपको इतना खाना ले जाना है, हम वो बना के दे देंगे, हम पिक करेंगे और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे। एक ये हो गया। फिर जहाँ हम झुग्गियों में ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको पढ़ाने की भी बात आई। पहले ये सिर्फ खाने के स्पेस पे था, फिर हमने पढ़ाने की बात आई कि वहाँ पे क्या होता है, जो झुग्गियों में लोग होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है कि जीवन चले, लेकिन उनका एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, बड़े बच्चे हैं तो वो क्या कहते हैं, काम पे चले जाएंगे उनके साथ, या छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल करेंगे, वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे हमने उनकी एकेडमी भी शुरू की, 10 बच्चे को 15 बच्चों को लेके पढ़ाना शुरू किया। आज की डेट में नोएडा में 3 जगह एकेडमी चल रही है, जो कि सेक्टर 82 में है, सेक्टर 44 के पार्क में एमिटी के पास है, सेक्टर 76 में है। वहाँ हम लोग उन बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, उनको जितना भी हम लोग हो सकता है हम लोग उनको खाना भी खिलाते हैं, पढ़ाते भी हैं, और उनके आगे जाके एडमिशन भी कराते हैं। ये हम लोगों की तरफ चल रहा है। और इट्स नॉट ओनली नोएडा, आपको सरप्राइज होगा कि बिना पैसे के ये ऑर्गेनाइजेशन 400-450 शहरों में चल रही है। तो नॉट ओनली नोएडा, आपको कहीं ऐसा लगे आपके कोई मित्र बेंगलोर में रह रहे हैं, तो वहाँ अगर कोई गैदरिंग कर रहे हैं, वहाँ अगर खाना बचता है, देन यू कैन कॉल अस कि आपको बेंगलोर के जो पीओसी हैं उनका नंबर दे दीजिए, हम लोग अरेंज करा देंगे। तो हम लोग आपको पीओसी का नंबर दे देंगे, आप बेंगलोर, चेन्नई, व्हाटएवर जहाँ भी हमारे लोकेशन पे हैं, आप वहाँ भी हमारा हेल्प हो सकती है, जितनी हेल्प हो सकती है खाना बचाने के लिए वो हम लोग करते हैं। ये मेन दो चीज़ है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि फंड जो है आप देना चाहे, मतलब होता क्या है कि यहाँ पे सेक्टर 82 में एक एकेडमी चल रही है। एक जगह थी जहाँ हमने ऐसे ही बैठ के पढ़ाना शुरू किया, फिर एक डोनर आए, उन्होंने क्या किया, हम यहाँ पे कमरा बना देते हैं, उन्होंने कमरा बना दिया, डायरेक्ट उन्होंने कमरा बनाया। अब क्लास चल रही है, तकरीबन 50-60 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे सेक्टर 44 की पार्क में पढ़ रहे हैं, जो कि हो रहे हैं। तो जितना भी आपकी तरफ सपोर्ट होता है, सेकंड थिंग ये सपोर्ट इन द सेंस, हमारे यहाँ सपोर्ट चाहिए कि आप फिजिकली कितना सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी 10 मिनट मिलती है, 1 घंटा मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं, वीकेंड पे टाइम मिलता है। आप अगर खाना डिस्ट्रीब्यूट करने हमारे साथ चलना चाहें, वेल एंड गुड। आप अगर आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाना भी चाहें, वेल एंड गुड, आप आइए, पढ़ाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। ये रेगुलर चीज़ें होगी। तीसरा एक पॉइंट है कि हमारा सर्दियों में कंबल बांटते हैं हम लोग। अभी ये होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो शॉप होती है, उनको हम फाइनल कर लेते हैं कि आप ऐसे एक कंबल होगा, मतलब लाइक कितने कंबल आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अशोक अंकल हमें बहुत सहयोग करते हैं इस चीज़ में, हर तरह से कई साल से करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप जितना भी डोनेट कर सकते हैं, आप साथ चलिए, हम रात को जाएंगे, हमको फ्लाई ओवर्स के नीचे, रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उनको वहाँ कंबल उड़ा के आएंगे। ये वाली बात है। उसके बाद 15 अगस्त के आसपास हमारा एक मेगा 15 दिन के लिए हम लोग राशन बांटते हैं। जहाँ जहाँ भी गाँव जाके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किस जगह पे ज़रूरत है, किस फैमिली को ज़रूरत है, वहाँ हम लोग राशन भी बांटते हैं, किट बनाते हैं, उन किट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आपकी तरफ से भी, जैसे मान लिया सोसाइटी में कहीं खाना बचता है, कोई फंड भंडारा हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप आइए, आप सिर्फ कनेक्ट कीजिए हमसे कि हाँ ऐसा हो रहा है कि आप में भी 1-2-4 सोसाइटी के मिल जाएंगे, और हम लोग सपोर्ट करेंगे, हर तरह से सपोर्ट करेंगे, कैसे उसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। नोएडा में जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं, हर तरह का हमने नोट कर रखा है, कहाँ कितने लोगों का खाना बढ़ सकता है, कहाँ 50 लोगों का है, 100 लोगों का है, कहाँ जाना है, हम लोग किससे जाते हैं, वो सब डिफाइन करें। तो यू मोस्ट वेलकम, आप जुड़िए हम लोगों के साथ। और एनिमल वेलफेयर भी हम लोग चाहते हैं कि उनको थोड़ा जितना भी सपोर्ट हम लोग कर सके। हाँ, ओल्ड एज जो मैंने आपको बताया कि हम लोग ओल्ड एज महीने में एक बार हम लोग ओल्ड एज होम में भी जाते हैं, उनको इधर सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं। अल्टीमेटली उनका सपोर्ट क्या होता है कि जितना हम लोग उनके साथ बैठेंगे, हम 2-3 घंटे जाते हैं उनके पास, बैठते हैं, उनके अंताक्षरी खेलते हैं, उनके साथ गाने गाते हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ा हमें अच्छा लगता है। वो अपनी बातें बताते हैं, हम अपनी बातें बताते हैं। या अनाथ आश्रम है यहाँ पे, ऑर्फनेज जो है, उनके पास वहाँ जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं, क्या उनके लिए हम आगे कर सकते हैं, उन बच्चों को कैसे एजुकेशन की तरफ और आगे बढ़ा सकते हैं, वो हम लोग काम करते हैं। तो ऐसा कोई लिमिट। Thank you so much to both of you.
तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि सब लोग सुने इनको एक बार, क्योंकि मैसेज डालने में 2 मिनट लगते हैं लेकिन मैसेज कोई नहीं पढ़ता जब तक कि आप बंदों को देखोगे नहीं, आप फील नहीं करोगे किसी के दुख को, तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं सब कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को ये समझाना चाह रही थी। तो एक और है, अगर मान लिया मैं यहाँ पे आया, अभी आपको मे भी आपने नंबर ले लिया मेरा, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भी है आपके पास कोई कॉन्टैक्ट, तो आप robinhoodarmy.com पे जाइए, उस पर एक ज्वाइन नाउ का बटन होगा, वहाँ पे अगर आपके पास सरप्लस फूड है, वहाँ एक लिंक है सरप्लस फूड का, उस पर क्लिक कीजिए, आपके पास 1-2 नाम, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस आप फिल करोगे, आप अपने आप हमारे सबसे कनेक्ट हो जाओगे। आपको टीचिंग में आपको सपोर्ट करना है तो वहाँ एक लिंक है कि आप टीचिंग में जाना चाहते हो, एज ए वॉलंटियर आप टीचिंग करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप फॉर्म करोगे, 2-3 नाम मोबाइल नंबर भरना होगा आपको, हाँ हमसे कनेक्ट हो जाओगे आप। जिस भी सिटी में हो वहाँ आप robinhoodarmy.com वेबसाइट उनको दे दीजिए, ठीक है, वो जो सिटी में होंगे उससे कनेक्ट हो जाएंगे, जरूरी नहीं हमसे कनेक्ट होंगे, हम नोएडा देख रहे हैं तो अलग अलग सिटी में जहाँ हो वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड टू दिस टुडेज सेशन, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा एंड यू कैन कंटिन्यू मोर ऑफ दीज एक्टिविटीज एंड आई थिंक First of all, let's give a standing ovation to Laughter Yoga first. I think they deserve it. And this is not the way they deserve. इस तरह से उनको acceptable नहीं होगा। ऐसे होगा। Thank you so much. And one for. Thank you. Now, please may I invite. Sir. Thank you so much. आप भी अनीता हैं? हाँ जी। अनीता टू अनीता। Shichi ma'am, अनीता के साथ। Shichi ma'am, please come and hand over a plant to. Thank you so much. हाँ चल रहा है यू कैन दिस साइड ओनली दिस इज वर्किंग देना है। Let's have a laugh. Rupa ma'am, I invite you to hand over a plant to. हाँ दोनों को दे दो। आइए आइए प्लीज कम। Thank you so much. And now please, all counseling group members and other. 20 से अभी लास्ट मंथ मैंने ज्वाइन किया है। मेरे में 2 चेंजेस मैंने नोटिस करे। एक तो मैं मॉर्निंग में सब पहले उठता था, मैं स्टेडियम जाता हूँ डेली, तो पहले चार्ज नहीं होता था, अपने आप को पुश करना पड़ता था कि चल यार चल चलना है, एक्सरसाइज करनी है, चलना है। मगर अब यहाँ से जाने के बाद जब मैं स्टेडियम जाता हूँ तो आई एम फुल्ली चार्ज, कुछ नहीं होता है मेरे को, मतलब सीधा जाके सीधे एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। सेकेंड, जब मैं कभी घर में खाली होता था, फ्री होता था, तो वही पुराने पिछले दिनों के कोई जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, कुछ टेंशन वगैरह रहती थी, यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अब नहीं होता मेरे को। जब मैं फ्री होता हूँ, खुलता हूँ, तो मेरे में ग्रेटिट्यूड सॉन्ग्स मेरे कानों में गूंजता रहता है। जब भी होता है ग्रेटिट्यूड सॉन्ग जो है वो मेरे कानों में अपने आप गूंजता रहता है, तो आई फील वेरी रिलैक्स। Random, very good.